العالمین ان لیس للانسان الا ما سعى۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر ہے کہ آج مختلف اضلاع سے ہمارے صدر مدرسین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ میں تشریف فرما ہے، اور آج کا وہ دن قابل مبارکباد ہے جب مدارس جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو عملے مدرسہ بورڈ کے جو سرگرم ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ انہوں نے پورے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور باقی جو ضروریات ہیں اس کی جزوی ضروریات ہیں اس دنیا میں اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا جو ہے پورے طور پہ عمل درآمد ہو، یہ مقصد زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ انسان کی تخلیق اور جنات کی تخلیق یہ اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت کیا ہے؟ جب ہمارے تمام حرکات و سکنات اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو یہ تمام اعمال یہ عبادت میں شامل ہیں۔ یہ پورے بہار میں جو مدارس ہیں اس کو ہمارے بزرگوں نے اس لیے قائم کیا تاکہ اسلام کا جو شناخت ہے، شاعر اسلام ہے، وہ دنیاوی علوم کے ساتھ باقی رہے۔ اور جب 1857 کے جو فرسٹ جو تحریک چلی، جو میوٹینی ہوا، اس کے بعد مسلمان علمی اعتبار سے پیچھے ہو گئے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے مدارس کا قیام کیا۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا، حضرت علی میاں مغیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوہ قائم کیا، سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، اور ذاکر حسین اور ان کے رفاقار نے جامعہ ملیہ قائم کیا۔ اور اس کے بعد آپ محسوس کیے ہوں گے کہ وہاں کے فارغین پورے ہندوستان میں مختلف مدارس میں کام کر رہے ہیں، اور یہ کام بہت ہی بہتر ڈھنگ سے آج سے 10-20 سال پہلے تک چلا۔ اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے مکان زمین دیا، مدارس کو قائم کیا۔ ہمارے اساتذہ کرام بہت ہی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ادھر 10-20 سال کے بیچ میں جو مقصد زندگی تھا، جو ہمارے کام کرنے کے لیے جو مدارس کو قائم کیا گیا تھا، اس مسئولین سے ہٹ کر صرف پیسے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مدارس کو ہم لوگوں نے سمجھ لیا، جس کے نتیجے میں عوامی سطح پر اور سرکاری سطح پر بہت بدنامی ہوئی، اور اس کا جو پورا کا پورا ذمہ دار مدرسہ بورڈ کے جو ذمہ دار بنے، چیئرمین بنے، سیکریٹری بنے، یہاں کا عمل ہے، اس میں ان کا پورا عمل دخل تھا۔ یہ مدرسہ بورڈ اس لیے قائم کیا کہ تعلیم کا ماحول، اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کا ماحول پورے بہار میں بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ وقت پر ایگزام ہو، رزلٹ نکلے، تاکہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے لوگ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ لیکن جو کام تھا تعلیم کا، وہ چھوڑ کر تمام کام ہونے لگے، اور سب سے چالاک وہ ٹیچر ہو گیا، وہ صدر مدرس جو زیادہ دیر تک مدرسہ سے غائب رہے اور لڑائی اور جھگڑوں میں لوگوں کو پھنسا دے، وہ بہت اچھا ہو گیا۔ اور جو ہمارے علماء کرام نیک تھے وہ دب گئے، اس لیے کہ بورڈ میں اس کی چلتی تھی، سسپینڈ کرا سکتا تھا، برخاست کرا سکتا تھا، جو چاہے کرا سکتا تھا، تو وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ 1-2 سال کے اندر
आपने महसूस किया होगा कि मदरसा बोर्ड बदعنवानी से पाक हुआ है। और जो मेन काम मदरसा में था कि निसाब तालीम मुरतब हो, किताबें बने। आप महसूस कर रहे होंगे 8-10 साल में कोई किताब निसाब के मुताबिक नहीं देखा, और जो निसाब में किताबें लिखी थी वो कहीं मिलती नहीं थी। तो यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ, जो पूरे दुनिया में तालीम के लाइन पे काम उसके जरिए किया जाता है, उन लोगों ने हम लोगों से रब्ता किया और उसमें माली मुआवनत किया, और उसी के दफ्तर में बैठ के नया निसाब तालीम मुरतब किए गए, जिसमें उलमाए कराम, देवबंद और नदवा, अशरफिया और सल्फिया के लोग आए, और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के लोग आए, और जामिया के आए, और आज मुरतब करके ये बुक, ये आपको फोल्डर में दिया जा रहा है निसाब तालीम 1 से लेकर मौलवी तक। और किताबों को भी हम लोग शायद करा दिया टेक्स्ट बुक के जरिए, SCRT का बुक 1 से 8 तक, और NCRT का बुक फौकानिया और मौलवी के लिए, और मजहबी किताब 1 से लेकर मौलवी तक तैयार करा दिया गया है, जो आज आप लोगों को हर मदरसे में लाइब्रेरी के लिए 1 सेट किताब फ्री दिया जा रहा है। तमाम बच्चों को हम फ्री किताब इसलिए नहीं दे सकते हैं कि सरकार ने बच्चों को पैसे दिए हैं। आप उन लोगों को इस काम के लिए तैयार कीजिए कि किताब वो खरीद लें बोर्ड से, और यहाँ मदरसा बोर्ड में भी है, पूर्णिया बोर्ड में भी किताबें रखी हुई हैं, और तमाम असातिज़ा किराम अपने लिए किताब खरीदें 1-1 सेट और मुताला करें। आने वाले दिन में आपका टेस्ट होगा, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने तमाम असातिज़ा किराम का टेस्ट ले रही है, जो 50% से कम नंबर लाएंगे उनकी सैलरी बंद हो जाएगी। ऐसा मत जानिए कि ये वजीफा मिल रहा है और पैसे आपको मिल रहे हैं और आप खा पी रही है, और मत जानिए निसाब में क्या है और क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। और पढ़ाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। हमारे जितने भी असातिज़ा मदरसों में काम कर रहे हैं, कभी किताब खोलकर सिलेबस का नहीं देखते हैं, बस दाखिला बहाली हो गई और इधर उधर के काम में लगे हुए हैं, कभी अस्थिर बैठते भी नहीं है। मदरसा में ड्यूटी है, हम 4 घंटा 8 घंटा बैठे जाके, बराबर मोबाइल में हैं। और मदरसा में जैसे पहुंचते हैं, इतना बेचैनी में रहते हैं कि किस तरह से कहाँ चले जाएं, क्या कर दें। पूरा घर का काम और जितना दिन भर का निज़ाम दिमाग में लेकर मदरसा में पहुंचे, बेचैनी में हैं, और हेड मौलवी को कैसे गाली दे दे, झगड़ा कर ले और वहां से हम निकल जाएं। आपका वक्त जो है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया है, वैसे ही ये 8 घंटे का टाइम आपका सरकार ने खरीद लिया है। आप फ्री नहीं है। और आज ये आप नहीं कह सकते हैं कि हमको वो सारे मराहत नहीं मिले हैं जो स्कूल कॉलेज में मिल रहे थे। पहले ये आपका कहना दुरुस्त था, लेकिन अब ये कोई शिकायत नहीं है। जो सैलरी वहाँ है, यहाँ सैलरी है। जो उनको पेंशन का स्कीम लागू करना है, यहाँ भी हो गया। 15% नए टीचरों का 8 से 14 मदरसों का यहाँ भी लागू हो गया। कोई चीज कमी नहीं है। और कुछ मामला है, इंशाल्लाह वो सब हल हो जाए। दिमाग बनाइए कि हमें पढ़ाना है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कोशिश नहीं करे। ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमाया, हालात यही बोर्ड है। कल क्या हालत थी इस बोर्ड में, ये लगता था शराब खाना है, लोग मस्ती में और नशे में हैं, कोई होश में नहीं रहता था। क्लर्क हो या अफसर हो या जो लोग आते थे, उन लोगों के साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता था, ये देखकर मैं हमेशा परेशान रहता था कि क्या हो रहा है हमारे उलमाए कराम। ये चेयरमैन का वादा या सेक्रेटरी या क्लर्क किरानी, ये हमारे असातिज़ा कराम और बच्चों की खिदमत के लिए है। मैं चेयरमैन हूँ, मुझे अल्लाह ने वजीर का दर्जा दिया है, तमाम तरह के मराहत दिए हैं। मैं आपके खिदमत के लिए हूँ। आपके जो ज़रूरियात हैं, आपका जो काम है, उसके काम करने के लिए मैं हूँ। और मेरा पूरा अमला हमारे टीचरों के लिए, बच्चों के लिए है। मैं टीचर और बच्चों के लिए हूँ। आप जैसे एक मदरसे के सदर मदरिस हैं, अगर आपने एक मदरसे में सही ढंग से बच्चों को तालीम और तरबियत देने में नाकाम रहे, तो अल्लाह ताला आपसे सवाल करेगा। वैसे ही मैं चेयरमैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चेयरमैन का वादा, मंत्री का दर्जा, मराहत, सब कुछ बहुत अच्छे लगते हैं।
हर तरह का सहूलत अल्लाह ने दिया है, कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं इस आराम व आसाइश में गुजार लिया तो ये 4000 मदारिस, 15,000 असातिज़ा कराम और 8 लाख बच्चे जब बेरारवी के शिकार होंगे तो उतना का जवाबदेही तो मुझे देना ही होगा अल्लाह के। हम मोमिन हैं, एक तरफ हम सरकार और दुनिया के सामने हमारा हिसाब लिया जा रहा है, वैसे ही अल्लाह के यहाँ भी हिसाब देना है। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसूलून, हर जिम्मेदार से सवाल किया जाएगा। ये दुनिया खेल तमाशा नहीं है कि आप अपने वक्तों को, और मुझसे ज़्यादा हमारे उलमाए कराम इस मामले में जान रहे हैं कि अल्लाह ने इस दुनिया को चलाने के लिए आपको खलीफा बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। अल्लाह कहीं दिखाई नहीं देता ज़मीन पे, तमाम निज़ाम चलता है इंसानों के ज़रिए। अल्लाह हकमुल हाकिमीन है, तमाम काम तो उसके हुक्म से होते हैं। लेकिन पहले इंसान के लिए अल्लाह ने कह दिया अन लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए कुछ नहीं मगर कोशिश। आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि जो काम मिला है ईमानदारी के साथ, दयानतदारी, कोशिश कीजिए। यही मदरसा बोर्ड है। जब एक बैठने के लिए आप तरह जाते थे, आते थे तो आपके साथ किस तरह सलूक किया जाता था, आज कोशिश की गई। वही मदरसा बोर्ड, कहीं से बहुत पैसा बाहर से नहीं आ गया, उसी पैसे में अल्लाह ने बरकत दे दिया है, एकदम हर चीज की फरावानी दे दिया है बोर्ड में, कोई कमी नहीं। और आप खुशकिस्मत हैं कि पूरे हिंदुस्तान में बिहार का वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ऐसे वज़ीर आला हैं जो उलमा से मोहब्बत करते हैं, मदारिस से मोहब्बत करते हैं। आप महसूस कर रहे होंगे कि 2005 से पहले बहुत सेकुलर हुकूमत के दावा करने वाले, मुसलमानों के लिए आंसू बहाने वाले लोग थे। हमारे मदारिस के क्या हाल थे, तमाम तरह के एफिलिएशन पर रोक लगा दिया गया था, कोई मदरसा आप नया नहीं खोल सकते थे। 15 साल एक मदरसा का एफिलिएशन नहीं हो सकता था, ना अपग्रेडेशन हो सकता था। और आज जब मैं नीतीश जी की सरकार बनी, शाही जी को मैं बुलाया था अंजुमन तरक्की उर्दू में, हम कहा ये क्या कर रहे हैं कि मदारिस का आपने, हमारी आबादी बढ़ रही है, उस रेशियो में मदारिस की जरूरत है, हमारे गरीब बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। तो उन्होंने वहां से एफिलिएशन पर रोक हटाया और आज तमाम मदरसों कि जितने लोग दरख्वास्त दे रहे हैं, जहाँ ज़मीन है, मकान है, उसको हम मंजूरी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने मदरसे, हम, मेरा अपना मानना है और मैं ऐलान भी किया हूँ कि हर पंचायत में अगर एक वस्तानिया मदरसा है, फौकाने के लिए दरख्वास्त दीजिए, मैं अपग्रेड करूँगा। और जहाँ पर एक अनुमंडल में एक फौकानिया है, उसको मौलवी के लिए दीजिए। आप फॉर्म यहाँ दिलवा देते हैं, दरख्वास्त दीजिए, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उन मदरसों को मैं अपग्रेड करूंगा। इसलिए शरह खादगी जो है वो 3-4% जो है ऊपर में जाकर है और नीचे में कुछ ज़्यादा है। तो हमारी आबादी 18% 17% है और हमारी शरह खादगी 3-4% हायर एजुकेशन में, फौकानिया मौलवी के ऊपर बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा 1700 मदरसे वस्तानिया हैं और 200 फौकानिया, और मुश्किल से 40-50 आलिम फाजिल मदरसे। उस रेशियो में कम से कम 500 अभी फौकानिया मदरसे चाहिए। हर पंचायत में जहाँ फौकानिया नहीं है, आप फॉर्म अभी दिलवाते हैं, भर के भेजिए, हम अपग्रेड करेंगे। और अल्लाह का करम है कि आज इस लॉकडाउन में भी, ये अभी जो कोरोना पीरियड में भी हमारे बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो गुज़श्ता साल से ज़्यादा है। अगर नहीं रहता कोरोना तो दूना हो जाता, बच्चों के तादाद बढ़ जाती। लोगों का एतमाद बढ़ा आप पर। अब पहले आप देखिए, आज से साल 2 साल पहले आप जहाँ कहीं भी जाते थे, सभी लोग दूसरे अलकाब से आपको पुकारा करते थे। सरकार में भी कोई ये था कि भाई ये मदारिस हवा में है, जैसे संस्कृत कॉलेज स्कूल हैं। लेकिन आज 1-2 साल के अंदर पूरी सरकार, बिहार गवर्नमेंट ये महसूस कर गई कि मदारिस सही मानों में फाल लोग हैं। और हम बता दूं कि हमारे जो उलमाए कराम है, अल्लाह ने इनको सलाहियत दिया है, अच्छे सलाहियत के मालिक हैं और अच्छे इल्म वाले हैं। लेकिन इकबाल का वो शेर है, वो शिकस्त खुर्द साही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रो रस्म पातशाही। ये शाही लोग थे, ये करगस के अंदर चले गए, साथी बन गए। करगस को गीत कहा जाता है और गीत जो है बहुत ऊंचाई पर रहता है।
100-200 किलोमीटर, और जहाँ गंदगी है वहाँ उतर जाता है। और शाही चिड़िया अपनी रोजी पहाड़ों पे तलाश करती है, जमीन पर कदम नहीं रखती। इसलिए आप शाही हैं, आप शाही की तरह रहिए, कभी गलत कामों में मुलविस मत होइए, अच्छे काम कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतर इंसान कौन है? सबसे बेहतर इंसान के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास। सबसे बेहतर इंसान है वो है जो लोगों की नफा रसानी की बात करे। अरे रोजी का ताल्लुक तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वमा मन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। दुनिया में जितनी मखलूकात बसती हैं, रिज़्क का जिम्मेदार अल्लाह है, अपने जिम्मे ले लिया है। आप कमाने वाले हैं, आप अच्छे मखलूकात में हैं, आप जो है रिज़्क के लिए ज़्यादा परेशान हैं। आज लाखों करोड़ों ये जितने भी जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, किसकी दुकान है, किसकी नौकरी है? अल्लाह खिला रहा है, रिज़्क तो देगा, लेकिन उस रिज़्क के लिए ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। ज़्यादा परेशानी जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दिया है उसको पूरा करने में रही है। क्योंकि आपस में हम खास तौर से अपने सदर मदरी से गुजारिश करेंगे, इस लड़ाई का हिस्सा आप मत बनिए। जितने भी जगह लड़ाई मदरसे में हो रही है लड़ाई, वो सारे के सारे जिम्मेदार सदर मदरसे। इससे बात नहीं बनती तो दूसरे आदमी को खड़ा करता है। मदरसा बोर्ड नहीं देखा रहता है, किराया देता है, बुला के मदरसा बोर्ड में लाता है, तब लड़ाई शुरू कराता है। अब तब लंबे अरसे तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई। अगर सदर मदरिस किसी को नहीं बुलावे, कोई नहीं लड़ सकता। बात बुरी लग सकती है, लेकिन इस सारा निज़ाम मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए कि मैं मदरसे से पढ़कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब मदरसे का कर्ज इसमें, इस कर्ज को चुकाना है। चेयरमैन का वादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो बहुत आर्जी है, कुछ दिन के लिए नहीं रहे। लेकिन अल्लाह ने जितना दिन मौका दिया है, और कुछ मंसूबा लेकर मैं बना था, और अल्लाह ने भी बनाया था। एक था करप्शन फ्री मदरसा बोर्ड। मदरसा बोर्ड से भी, मदरसों से भी करप्शन दूर करना। बहाली में एक नए हरामत ली, बहाली नहीं हो रही। हमारे पास 3-4 हज़ार जगह खाली हैं। आपसी लड़ाई और बेटा भतीजा के चक्कर में बहाली नहीं। तमाम बहाल कराइए अच्छे लोगों को जो जानकार हो, ताकि उनकी रोजी मिल जाएगी और मदरसे में पढ़ाई लिखाई के माहौल बने। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम रुकावटें जो है दूर हो। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह नए जोश जज्बा के साथ। इकबाल का एक शेर है, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमान। जब आप जग जाएंगे मिशन में कामयाब हो गए, कोई जाती गरज नहीं है, कोई मकसद नहीं। एक ही मकसद है, अल्लाह का दीन गालिब हो जाए। और कौन करेगा? आप करेंगे। आप मेहनत करेंगे, नतायज आएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।